It Change can the move the direction. object. to move. It can move. It Oh, can move the Say object Can as make if a it is at rest. and it can stop an it can object decrease the if speed it's of moving. the object. ठीक है, मैंने कुछ कुछ पॉइंट सुने हैं वो मैं बोल देता हूँ. इट कैन स्टॉप अ बॉडी विच इज इन मोशन. ठीक है, इट कैन मूव अ बॉडी विच इज इन रेस्ट. इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी. इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी. It can change the shape and size of the body. Fantastic. Okay, then we have discussed about there are two types of force: balanced forces and unbalanced forces. Okay, how can you difference between balanced force and unbalanced force? The imbalance for both the forces are equal, and in unbalanced force, one force is bigger than the other. ओके फैंटास्टिक. ठीक है, अगर अभी जैसे कि हम एक्सप्लेन कर रहा है कि इफ देयर आर टू फोर्सेस, ठीक है, अगर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो हम उसको कहते हैं बैलेंस फोर्स. ओके ओके, तो अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो फोर्स ही एग्जिस्ट हो. ठीक है, आपको अब पता चलेगा कि एक ही ऑब्जेक्ट पे तीन तीन चार चार फोर्सेस भी लग सकती है. अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही लगे रहे, तीन चार फोर्सेस लगने के बाद भी, तब भी मतलब कि वो हो सकता है बैलेंस फोर्स हो. राइट, तो ओके देन ओके आफ्टर दैट वी हैव सीन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. व्हाट इज दैट? So it opposes the motion. Okay, so is it a force or it is a motion or is it a different phenomena? Is a momentum. It is a force. Okay, force. it is also a force which is acting in the opposite direction of motion. Okay, then we have seen so many of example of that. Okay, okay, after that can you please write down what is this inertia? The tendency of an body. Sorry Aditi, the tendency. Sir, the tendency of a body The- to remain at state or in the uniform motion is known as inertia. Okay, ठीक है. Okay, so inertia is nothing but inertia tell us about the state of motion of rest or motion. ठीक है, या रेस्ट में बताता है या मोशन में बताता है हमको कि बॉडी का मोशन कैसा है. ओके, देन वी हैव डिस्कस अबाउट हाउ द inertia depend on mass. So can you please suggest some explanation to that? Can you repeat the question? How does the inertia relate to mass? Sir, Directly. Is directly proportional. Okay, it's directly proportional to. Okay, you can say so, but actually inertia of a object, ठीक है, depends on mass. और भी कुछ बताया था साथ में? and well, Excuse me, sir. Yeah. Velocity. velocity and mass पे डिपेंड करती है. Mass and velocity. Yes, sir. Mass and velocity. चलो कंफ्यूज हो गए. अगर ठीक है, मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ. ओके, तो हमने मोमेंटम पढ़ा था. व्हाट इज दैट? Mass into velocity. Into velocity. Into velocity. Velocity is called Mass into velocity. P is equal to mv. Okay, then momentum of a body depends on Mass and velocity. proportional to Mass mass into and velocity. Proportional to the mass and velocity. okay, and you are saying that inertia also depend on mass and velocity. So is inertia related to momentum? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है, सब भूल गए. अरे मैंने आपको वो एग्जांपल नहीं बताया था क्या? Try to Sir, recall please that. repeat the question. हाँ सर. ठीक है, मैंने आपको एक्चुअली ऐसा बताया था कि दो आपके पास रॉक्स हैं. ठीक है, ये 2 kg का है और ये है 10 kg का. मैंने यहाँ पर बताया था. फिर यहाँ पर फोर्स मेरे को किस केस में ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो आपने मुझे बताया था सर
सेकेंड Second केस case. में राइट B. 10 kgs में मुझे ज्यादा फोर्स kg लगानी पड़ेगी। तो मैं ये कह रहा था कि जहाँ फोर्स ज्यादा लगती है वहाँ इनर्शिया ज्यादा होता है। फिर मैंने आपको बताया दिया था कि ओके सो इनर्शिया हैज अ प्रॉपर्टी टू डिपेंड ऑन मास। तो इनर्शिया ओनली डिपेंड ऑन मास। ठीक है, इनका कोई ऐसा को रिलेशन नहीं है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि मास का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, बट ओनली डिपेंड्स ऑन मास नॉट ऑन वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? Yes. ठीक है, मोमेंटम जो होता है वो मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। ओके, कुड यू प्लीज या How inertia can't be depend on velocity. Kilo. ओके, वन एट अ टाइम या Inertia velocity पे किसी के डिपेंड नहीं होगा। कैसे अगर depend- बॉडी मूव कर रही है हाँ तो अगर अपन इनर्शिया मतलब कुछ फोर्स लगाएंगे तो इट विल बी फास्टली मूव देन द बॉडी एट रेस्ट। ओके, मुझे सिर्फ ऐसा क्वेश्चन समझ में आया है कि आप पूछना चाह रहे हो कि सर हाउ इनर्शिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। यस सर। ठीक है, तो हमने इनर्शिया को जब पहले डिफाइन करा था तो हमने कहा था इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल ट्राई टू रिमेन इन रेस्ट, और इफ द बॉडी इज इन मोशन it will remain in motion until and unless some external force is applied on that। तो जैसे ही मतलब एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग जाती है तब तो मैं खुद कह रहा हूँ कि जैसे ही फोर्स लग गई तो वेलोसिटी आ जाती है कांटेक्ट में। ठीक है, वेलोसिटी जैसे ही आ गई तब मोमेंटम भी आ जाएगा पिक्चर में, एनर्जी भी आ जाएगी पिक्चर में। ठीक है, लेकिन दो केस हैं ये सिर्फ, अनटिल एंड अनलेस। ठीक है, अगर जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है आपका एंड अगर ये रेस्ट में है, अगर ये मूव नहीं हो रहा है, हम तब की बात कर रहे हैं जब तक कि इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। सेम केस हियर, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और मूव करने के साथ साथ इस पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रही है, हम तब तक की बात कर रहे हैं कि इनर्शिया तब डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ मास पे। हमने एक को रिलेशन निकाला था। ठीक है, कि एक्चुअली आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, दोनों बॉक्स पर आप यहाँ पर एफ फोर्स लगा रहे हो, लेकिन ये बॉक्स तब भी मूव नहीं हो रहा है। मैंने ऐसा थोड़ी कहा था कि बॉक्स मूव होके आगे जा रहा है। ठीक है, मैं ये बॉक्स रेस्ट पे था, मैं रेस्ट की ही बात कर रहा था कि मतलब कि फोर्स कहाँ पर ज्यादा लगाना पड़ेगा तो थोड़ा मूव होगा। राइट, हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स है, पर इनर्शिया का जो ऐसा रहता है कि अगर वो रेस्ट में पड़ा हुआ है, एक सिनेरियो में बता रहा था कि दो बॉक्सेस आपके पास पड़े हुए हैं और यहाँ पर आपको किसमें ज्यादा मतलब कि एक्चुअली फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मतलब कि आप उसको मूव कर पाओगे, तो इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, तो इनर्शिया उसका ज्यादा होगा जिसका मास ज्यादा होगा। डिड यू गेट दैट? यस सर। Okay, my voice is low. Okay, is my voice is very low? No, sir, it's all clear. It's clear. Okay. चलो ठीक है, मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, पर एक्चुअली मेरा माइक है मैंने कहीं रख दिया है, मुझे मिल नहीं रहा है, आज तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके okay, let's move on. Okay, could you please write down the first law of motion for me? So please repeat. Could you please write down for me what is the first law of motion? नहीं Avantika, first law of motion is different. This is second. Okay, मन not हटा देना, until and unless external force is applied. ठीक है, not apply तो वो अलग सेंस हो जाएगा पूरा।
ओके, इज इट और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम और क्या कह सकते हैं, उसका अदर नेम क्या है? Very good, Meenal. Law of inertia. Okay. Now, okay, what is the second law of motion is all about? Okay, ठीक है, सब लिख रहे हैं force is equal to ma. Okay, could you please elaborate? Okay, very good, Tanvi. Force is directly proportional to mass and acceleration. Okay. Okay, very well, fantastic. Those who are writing change in momentum, the rate of change of momentum is directly proportional to force. Wait a second. Okay, Ketan, force is equal to mass into acceleration है. वेलोसिटी तो वो तो दूसरा है, ठीक है. मास और वेलोसिटी का तो जो है वो मोमेंटम है, ठीक है. फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स इज इक्वल टू m into a. A is your acceleration. Is that right? Correct it, Ketan. Okay, then. Okay, ठीक है. The rate of change of momentum is directly proportional to force. Okay, तो ओके, अब आप मुझको डिराइव करके बता दो चैट बॉक्स में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे आ जाता है. ठीक है, हमने सिंपल यूनिट में लिख देते हैं m इंटू ए, ठीक है, और हमको डिराइव कहाँ से करना पड़ता है, चेंज इन मोमेंटम, राइट. तो चेंज इन मोमेंटम को हम ऐसा कैसे लिख देते हैं, ए कैसे लिख देते हैं, कि वो चीज़ आपको याद है कि नहीं? ट्राई टू कनेक्ट दैट. फैंटास्टिक अनेरी. ठीक है, हमने एक्चुअली क्या करा था, हमने मोमेंटम लिया था, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम. फिर हमने कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. पहले हमने लिया था चेंज ऑफ मोमेंटम, फिर उसके बाद हमने लगा दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो एम वी माइनस एम यू डिवाइड बाई टी, और वी माइनस यू बाई टी को आपने लिख दिया एम ए सिंपली. चलो ठीक है. ओके, देन वी हैव स्टडीड अबाउट द third law of motion. What is that? So every action has an equal and opposite reaction. Okay. Okay. Now, okay. Can you please give some example of that? Launch of rocket, bullet of gun, walking, throwing of ball on the wall so that it can come back to us. Very good, Manish. Recoil of gun. Okay. चलो ठीक है, अब कुछ हम नया पढ़ सकते हैं. यू आर अवेयर ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स. ओके, चलो ठीक है, देखते हैं कुछ कहाँ से स्टार्ट करना था. मैंने ये प्रेजेंटेशन आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी. No, sir. No, sir. ओके, आई विल सेंड यू टुडे itself. अगर मैं नहीं करूँ तो मुझे बता देना, मैं भूल जाता हूँ.
ठीक है, कोई मैसेज कर देना, आई विल सेंड इट। ओके सर। चलो अब हमको एक देखना है कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, एक ये सडन पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस इवनिंग। ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, अब लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट करता है, ठीक है, आप ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट बोल रहा हूँ फिर उसको एलैबोरेट करूँगा। द टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, मैंने एक लाइन यूज करी है, द टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट और कंजर्व। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर दो बॉडी है, ठीक है, वो आपस में टकरा रही है, ठीक है, तो उसके पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम, ठीक है, दोनों ही इक्वल होगा। ठीक है, द मोमेंटम ऑफ अ टू ऑब्जेक्ट बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, कॉलिजन होने के पहले मोमेंटम सेम रहेगा और कोलिजन होने के बाद का जो मोमेंटम होगा वो सेम रहेगा। कुछ समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब कुछ, यस सर। ठीक है, कुछ, ओके, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। चलो ठीक है, वापस रिवाइज करता हूँ। पहले आप ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम पहले देखते हैं, फिर मैं आपको वापस से बताऊंगा। ओके, अब जैसे कि ए और बी, मेरे पास दो बॉल है, ठीक है, इनका मैंने यहाँ पर मास लिख रखा है MA/MB, और ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, UA और UB। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। अब मुझे एक केस आप ये बताओ कि ये कब एक्चुअली कोलॉइड कर सकते हैं। ठीक है, जब UA की वेलोसिटी ज्यादा होगी UB से, या UB की वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, तब ये UA की वेलोसिटी UB से ज्यादा होगी। UA की वेलोसिटी ज्यादा होगी। UB से ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। जब UA की वेलोसिटी ज्यादा होगी UB से, तभी तो ये कोलिजन होगा। तो मतलब कोलिजन होना, ये कोलिजन हो गया। ठीक है, हमने माना कि ये जो UA है इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, तभी ये बॉल B को जाके टकराएगी, कोलाइड करेगी, राइट। अब इस कोलाइजन में क्या हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही ये यहाँ पर कोलाइड हुआ, ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दो टाइप की फोर्स लग रही है। एक फोर्स लग रही है जो AB पे अप्लाई कर रहा है, ठीक है, वो लग रही है लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड। एक फोर्स लग रही है जो BA पे अप्लाई कर रहा है, तो वो लगेगी लेफ्ट हैंड साइड। उस फोर्स का नाम हो गया FBA। ठीक है, दोनों बॉल आपस में एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रही है। ठीक है, अब ये चीज इतनी कोलाइड होने के बाद क्या हो रहा है, ठीक है, A बॉल की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है और B बॉल क्या करती है, आगे तेज भागने लग जाती है। ऐसा होता है, कैरम खेलते हो आप, देखते हो जब आप कैरम में स्ट्राइक करते हो, ठीक है, स्ट्राइकर की आपकी वेलोसिटी तेज रहती है। कोई अगर रुकी हुई जो क्या बोलते हैं, कैरम के जो ब्लॉक्स होते, अरे कैरम की गोटियों को क्या बोलते हैं, कॉइन। राइट, कॉइन्स। ठीक है, तो स्ट्राइकर की वेलोसिटी आपकी ज्यादा रहती है, फिर आप उन कॉइन्स को जब मारते हो तो कॉइन्स आगे चले जाते हैं, स्ट्राइकर वही रह जाता है। ऐसा होता है? Yes, sir. यस सर। तो उस केस को आप इमेजिन करो। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है हमारे साथ कि यहाँ पर UA की वेलोसिटी ज्यादा होगी अगर सेम डायरेक्शन में, तभी ये जाके B पे कोलाइड करेगा। ठीक है, कोलिजन होने के बाद क्या होगा, A अपनी एनर्जी B को दे देगा और B आगे निकल जाएगा, तो B की वेलोसिटी कुछ ज्यादा हो जाएगी, A की वेलोसिटी कम हो जाएगी। ऐसा होगा? तो एक ही वेलोसिटी कैसे कम होगी? कम कैसे हो जाएगी? यस सर। ओके, अब जैसे कि ये तो अगर किसी ने कैरम खेला हो, या फिर जैसे कि ओके, तो आज आप एक काम करना, ठीक है, दो बॉल्स लेना, ठीक है, टेनिस की बॉल लेना, एक बॉल को आप हिट करना। ठीक है, अब आप जब आप उस बॉल को हिट करोगे ना, तो जिस बॉल को आपने हिट करा है वो तो आगे चली जाएगी तेज, और जिस
को आपने फेंका था वो मतलब कि ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इनकी बिल्कुल वेलोसिटी एक ही 0 हो जाएगी, पर मतलब कि कुछ कम हो जाएगी और बी की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। ओके, हम पहले ये केस देखते हैं कि यहाँ पर ये जो दो वेलोसिटीज है, इसमें से ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, मुझे ये बताओ। ए ए की ज्यादा होगी, एक ही। ठीक है, तभी कोलिजन होगा। ओके, अब जो राइट हैंड साइड है, इन दोनों में से किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? बी 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 की ज्यादा होगी, बी ठीक है। अब मैं एक्चुअली ऐसा बोल रहा हूँ कि ये जो कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम है वो ऐसा बोल रहा है कि इनका पहले का जो मोमेंटम है, ठीक है, इनका टोटल मोमेंटम अगर कुछ वैल्यू होगी उसकी, तो जैसे कि हम मान लेते हैं एम ए, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ये हो जाएगा टोटल मोमेंटम कोलिजन के पहले का, लेफ्ट साइड वाले का। ये किसके बराबर हो जाएगा? राइट साइड में जो आपको दिख रहा है मोमेंटम, इन दोनों को ऐड कर दोगे उसके बराबर हो जाएगा। मतलब कि एम ए वी ए प्लस एम बी UB. डी, इसके बराबर हो जाएगा। तो लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम यही स्टेट करता है कि जो मोमेंटम है, ठीक है, ऑफ टोटल सिस्टम इज कंजर्व कोलिजन के पहले भी और कोलिजन के बाद में भी। आप समझ में आया? थोड़ा नहीं आया तो ना बोलो, मैं कुछ और बताऊंगा फिर। कुछ वैल्यू पुट करके एग्जांपल बताओ ना। ओके चलो ठीक है, वैल्यू भी पुट करते सर हैं। कोई लाइव एग्जांपल दो ना, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल। ओके, रियल लाइफ एग्जांपल तो एक्सीडेंट्स होते हैं, देखें Yes, नो sir. सर। पीछे से जब पीछे से अगर आपकी गाड़ी स्लो चल रही है, ठीक है, जब पीछे से आके कोई आपको पीछे से तेज स्पीड में आता है और आपको एक्चुअली धक्का दे देता है या फिर टच करता है, तो आपकी गाड़ी आगे चली जाती है, उसकी गाड़ी वहीं के वहीं रह जाती है। यस सर। ठीक है, यस सर। हाईवेज पे मतलब कि जितने भी वीडियोस वायरल होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि कार खड़ी थी, पीछे से एकदम से ट्रक आई, ट्रक ने धक्का मारा तो कार तो आगे चली गई, ट्रक वहां की वहीं रह गई, या फिर जो गाड़ी तेज पीछे से आई थी वो वहां की वहीं रह गई और जो गाड़ी खड़ी थी वो आगे चली गई। ठीक है, हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे थोड़े सारे, तब बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एग्जांपल आएंगे। ठीक है, ओके चलो ठीक है, मैं एक और तरीके से आपको बताता हूँ, अब थोड़ा आपको थोड़ा अच्छा लगेगा वो। Okay, can anyone read this for me? Okay, कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ेगा? Sir, me. Go for it. The law of conservation of momentum states that the sum of momenta of two objects before collision is equal to the sum of momenta after collision, provided there is no unbalanced forces acting on them. This means that the total momentum of the object is unchanged or conserved by the collision. ठीक है, दो चीजें हो रही है, कॉलिजन होने के पहले और कॉलिजन होने के बाद। मैं क्या कह रहा हूँ, टोटल मोमेंटम कॉलिजन होने के पहले, तो ये जो ए बॉल है इसका कुछ मास होगा, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इसका मोमेंटम होगा। ठीक है, कोई ये बी बॉल है, इसका कुछ मास होगा, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो इसका कुछ मोमेंटम होगा। अगर इन दोनों बॉल्स के मोमेंटम को आप ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये हो गया बिफोर कोलिजन। अब राइट साइड देखो, ठीक है, कोलिजन होने के बाद ए बॉल का कुछ मास होगा, ठीक है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी,
बी बॉल का कुछ मास होगा, उसकी वेलोसिटी होगी, इसका कुछ अलग मोमेंटम होगा। इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे, ठीक है, तो टोटल मोमेंटम आ जाएगा आफ्टर कोलिजन। तो मैं यही चीज बोल रहा हूँ कि टोटल मोमेंटम जो है, ठीक है, कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद इक्वल होगा। यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब समझ में आया थोड़ा बहुत? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. ठीक है। अब कोई रीड करो कि ये क्या सेंटेंस मैंने नीचे लिख रखा है ब्लैक लेटर्स में। एनीवन? अदिति? Sir, me. ओके, अवंतिका? If two Sir, balls me. A and B of masses MA and MB are traveling in a straight line with initial velocity UA and UB, and if UA greater than UB, the two balls will collide with each other. During collision at the time T, ball A exert a force FAB on a ball B and ball B exert a force FBA on ball A. If VA and VB are the velocities of a ball A and B after collision, the momentum of ball A and after collision are MAUA and MAVA. And the momentum of a ball B before and after collision are MB, UB and MB, VB. ओके, थैंक यू फॉर रीडिंग आउट लाउड। ओके, अब यहाँ पर एक्चुअली मैंने वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। ये बॉल है, इसका कुछ मास होगा, ठीक है। टू बॉल्स हैव मास MA एंड MB आर ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन with their initial velocities UA and UB, और कोलिजन तभी होगा जब UA की वेलोसिटी इज ग्रेटर देन UB, तभी तो वो आके कोलाइड करेगी। अगर UB की वेलोसिटी ज्यादा रहेगी UA से, तो UB तो बहुत आगे निकल जाएगी, B जो बॉल होगी आपकी बहुत आगे निकल जाएगी, और A तो पीछे पीछे ही रह जाएगी। ओके, देन टू बॉल्स विल कोलाइड विथ ईच अदर, जब A की वेलोसिटी ज्यादा होगी। ओके, ड्यूरिंग कोलिजन, जब कोलिजन हो गया, ठीक है, टी टाइम पर कोलिजन हो गया, बॉल ए ने एक फोर्स लगाया ऑन बॉल बी, दैट इज योर फोर्स FAB, ठीक है। FAB को आप कैसे डिफाइन करोगे? फोर्स अप्लाई बाय बॉल ए ऑन बॉल बी, ठीक है। ए ने बी पे जो फोर्स लगाया दैट इज योर FAB, एंड सेकेंड बॉल बी एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ FBA, ठीक है। बी बॉल क्या कर रही है? ए पे फोर्स लगा रही है। ये क्यों लगा रही है? क्योंकि हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, ठीक है। एवरी एक्शन एंड, ठीक है, थर्ड लॉ क्या था? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो जितना फोर्स ए ने बी पे लगाया है उतना ही बी ए पर लगाएगा, राइट। तो इनकी जो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, FAB इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस FBA, दोनों फोर्स अगर आपको बैलेंस करनी है तो। ओके, देन इफ VA and VB are the velocities of ball A, ठीक है। आफ्टर कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज कुछ हो जाएगी VA और VB। इतना समझ में आ गया क्या हो रहा है कि मतलब दो बॉल्स है, उनकी मासेस है और उनकी इनिशियल वेलोसिटीज है और उनकी बाद में फाइनल वेलोसिटीज हो गई। ओके, अब यहाँ पर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने देख लिया, ठीक है। द मोमेंटम ऑफ अ बॉल A बिफोर द कोलिजन R, ठीक है। कोलिजन होने के पहले की जो वेलोसिटी थी A की, वो थी MAUA। कोलिजन होने के बाद A की जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी MAVA, ठीक है। और B वाली बॉल है, ठीक है, उसका जो मोमेंटम है कोलिजन के पहले दैट इज योर MBUB, और बाद में जब कोलिजन हो गया है तब उसकी मोमेंटम हो जाएगा MBVB, ठीक है। मोमेंटम की इनिशियल वैल्यू निकालनी कैसे है? आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे 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 मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या आ जाए? निकल जाएगा मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको क्या करना है? आपको इन दोनों को ऐड कर देना है, तो आपको निकल जाएगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इन दोनों को जब आप ऐड कर